want to speak something very interesting, a little different from my usual sermons. और आज मैं बहुत ही कुछ खास अचंभा सा बोलने वाला हूँ जो कि मेरे जो रोजाना की जो संदेश है उससे थोड़ा बहुत ही अलग है। Today I take you to the book of Habakkuk, आज मैं आपको हबक्कुक की पुस्तक की ओर ले जाना चाहता हूँ, chapter 1. उसकी पहला अध्याय। And those of you who have come here this afternoon, how many of you are very angry with God? और आप में से जो लोग यहाँ पर आए हैं कितने जन हैं जो परमेश्वर से बहुत गुस्से हैं, Or some of you who are really unhappy with how God is dealing with you in your life? और कुछ ऐसे लोग कौन है जो परमेश्वर से थोड़ा नाराज है कि जिस तरीके से परमेश्वर उनके जीवन में कर रहा है। And the season that you are going through is such that you feel there are so many questions in your heart about God. और ये जो समय जिसमें आप चल रहे हैं, हो सकता है कि आपके मन में परमेश्वर के लिए बहुत सारे सवाल हो। How many of you are here this afternoon? आप में से कितने जन हैं, Please raise your hand. अपने हाथों को आप उठा सकते हैं। Oh, so many. I thought there will be nobody, but so many people are raising your hand. मैंने सोचा कि कोई भी नहीं होगा, लेकिन बहुत से लोग हैं जो अपने हाथों को उठा रहे हैं। And this sermon is especially for those of you who thinks that God is unfair. और ये सरमन जो है, ये संदेश है उनके लिए है जिनको लगता है कि जो परमेश्वर है वो सही नहीं। Or deep inside of your heart, you feel unhappy with how God is dealing with you in your life. और अपने मन की गहराई में कहीं ना कहीं आप थोड़े नाराज हैं जिस तरीके से परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है। Now, in the book of Habakkuk, chapter 1, in the Old Testament, और हबक्कुक की पुस्तक में जो कि पुराने आयाम में है, उसके पहले अध्याय में let me tell you a bit about the prophet Habakkuk. मैं आपको जो नबी है हबक्कुक उसके बारे में थोड़ा सा बताना। Even the name sounds so difficult. यहाँ तक कि जो इसका नाम है वो भी थोड़ा कठिन सुनाई पड़ता है। Is prophet Habakkuk. वो जो है नबी हबक्कुक है। I hope you don't pronounce something else when you pronounce Habakkuk. और मेरे ख्याल से आप कुछ अलग ही नहीं इसको उच्चारण करेंगे जब आप हबक्कुक के नाम का Habakkuk is from the Old Testament. जो हबक्कुक है वो पुराने आयाम में से है। And he lived and he wrote about the book of Habakkuk 600 years before Jesus Christ came to this world. और यीशु मसीह के इस धरती पर आने से पहले उसने 630 वर्ष पहले इस पुस्तक को लिखा था। इस नबी 100 years before. 600 साल पहले। And then he was a very different prophet. और ये बहुत ही अलग तरीके का नबी था। What does a prophet do? जो एक नबी है वो क्या करता है? The prophet speaks to people about what God speaks to him. जो नबी है वो लोगों से वो बोलता है जो परमेश्वर उससे बोलता था। But prophet Habakkuk was very different because he spoke to God what people complain and tell him about God. लेकिन जो हबक्कुक नबी था वो थोड़ा सा अलग था। वो परमेश्वर से बोलता था जो लोग उसको शिकायत कर रहे हैं, वो Complaints people have, जो शिकायतें जो लोगों की हैं, the hurts people have. जो दुख जो लोगों के हैं, All of this was brought by the prophet Habakkuk and then conveyed to God himself. और ये सारे के सारे जो संदेश थे वो हबक्कुक के पास लाते थे और हबक्कुक उसको परमेश्वर के सामने रखता I'm था। sure many of you will be so happy to have such a prophet. और मैं निश्चित हूँ कि आप में से बहुत से लोग खुश होंगे इस तरीके के नबी को पाकर। Wonderful to have a prophet if you can convey your anger, your complaints, your hurts, your frustrations to God through a prophet. कितना ही अच्छा होगा कि अगर आप अपनी शिकायतों को, अपनी परेशानियों को, अपने दुख को आप एक परमेश्वर को पहुंचा रहे हैं एक नबी के द्वारा। Now Habakkuk was such a prophet, और हबक्कुक एक इस प्रकार का नबी था and therefore he was very different from prophets like Isaiah, from prophets like Elijah. और इसीलिए वो जो बाकी जो नबी थे एलाइजा और एलिशा और जो उनके से अलग था। He also was a person who didn't like the way God was doing things. वो एक ऐसा भी व्यक्ति था जिसको पसंद नहीं था कि जिस तरीके से परमेश्वर कर रहा था। Now this was written during a time, he wrote this complaining, his prayer was during a time when the city and the place of Judah was very prosperous, but at the same time there was lot of injustice, lot of corruptions, lot of unfairness happening to the people of Israelites. और अब ये ऐसा समय है जहाँ पे जो जगह है जुदा वो बहुत ही उन्नति कर रही थी, लेकिन वहीं पर ही उसके साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे अत्याचार, बहुत सारे भ्रष्टाचार और पाप बढ़ते जा रहा था। So he could not bear to see that God's people were suffering. और ये देख नहीं पा रहा था कि जो परमेश्वर के जो लोग हैं वो इससे परेशान हो रहे हैं। He couldn't bear to see that God's people were in sickness, were in poverty, were in sins. और वो देख नहीं पा रहा था कि जो परमेश्वर के जो लोग हैं वो गरीबी में, बीमारियों में वो पड़े हुए हैं।
Sometimes when you begin to see things around, you feel that God is not fear. कभी कभी जब आप ऐसे चीज़ों को अपने चारों ओर देखते हैं, आप देखते हैं कि जो लोग हैं वो सही, जो परमेश्वर है वो सही नहीं है। Why should God's people suffer? क्यों जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें परेशानियां Why उठानी should पड़ती those people go through so many kinds of persecutions? क्यों जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें बहुत सारी सताव से होकर के गुजरना Why पड़ता है? should God's people live in poverty? क्यों जो परमेश्वर के लोग हैं वो गरीबी में होते हैं? Sometimes when we get sick, why do we get sick? कभी कभी जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम क्यों बीमार पड़ते हैं? Sometimes when things doesn't happen our way and jobs opening doesn't happen for us or we remain jobless, why does it happen? कभी कभी चीज़ें हमारे अनुसार नहीं हो रही होती हैं और जो नौकरियां हैं हमारे लिए नहीं मिल रही होती हैं, तो ये ऐसा क्यों हो रहा होता है? Sometimes I hear about young people feeling so bad because their exam papers are leaked and there is corruption and many things happening even within the examination. और कभी कभी मेरे को एक खबर भी मिलती है कि जो नौजवान लोग हैं वो इस बात की शिकायत करते हैं कि जो उनकी परीक्षाओं के जो पेपर हैं वो चोरी हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। Many years ago when I was very young, I went to a government office to apply my application. और बहुत साल पहले जब मैं बहुत ज़्यादा नौजवान था, मैं एक अधिकारी के दफ्तर में गया एक पत्र लिखने के लिए। I gave an application for my examination. मैंने वो जो पत्र था अपने परीक्षा के लिए लिखा था For morning till afternoon, I was standing in the queue. और उस सुबह से लेकर शाम तक मैं वहाँ पर खड़ा रहा था। And as my turn came, और जैसे ही मेरी बारी आई and they said that we are closing this application. और वो कहते हैं कि अब हम इस पत्र को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। We asked why, हमने पूछा क्यों, and they said that the government has decided to withdraw this post. और उसने कहा कि जो सरकार है उसने जो उपाधि है इसको वापस ले लिया है। It was so surprising for many of our students. We were so frustrated. और ये बहुत ही आश्चर्यचकित था, हम सभी विद्यार्थियों के लिए हम बहुत ही गुस्से में We हुए। were very sure in our heart that maybe some of the ministers and big shots have bought these seats and given to the relatives. और हम एकदम निश्चित थे कि कोई मंत्री या कोई बड़ा आदमी जिसको ये उपाधि दे दी गई है जरूर। And in the same way, when you begin to see such injustice happening in the world, we have many questions before God. और इसी प्रकार से जब हम देखते हैं इन संसार में उस अन्याय को होते हुए, तो परमेश्वर के लिए हमारे मन में बहुत से सवाल होते हैं। When we see a lot of parents, both parents losing their life and leaving their children orphans, especially during the COVID, I personally had questions in my heart. और जब मैंने देखा इस कोविड के दौरान में कि जो माता पिता है वो अपने जीवन को खो दे रहे हैं और उनके जो बच्चे हैं वो अनाथ ही पड़े हुए हैं, खास तौर से मेरे मन में भी ये सवाल आया था। And therefore, the book of Habakkuk chapter 1 verse 2, Habakkuk began to ask the question. और इसीलिए हबक्कुक की पुस्तक उसका अध्याय 1:2 में यहाँ पे हबक्कुक है वो सवाल पूछता है। He said, "How long, Lord, must I call for help, but you do not listen? Oh, cry out to you violence, but you do not save." हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दोहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? How many of you this afternoon have the same question? आप में से कितने लोगों के पास यही सवाल है? So many years you have been praying for answers. बहुत सालों से आप प्रार्थना कर रहे हैं उत्तर पाने के लिए। Your prayers are not answered. आपकी जो प्रार्थनाएं हैं उसका फल नहीं मिल रहा है। Breakthrough in your life. आप अपने जीवन में एक बहालीकरण के लिए दुआ कर रहे हैं। You're praying because sometimes you also have a lot of financial debts in your life. आप प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी जो आर्थिक कर्जे हैं वो हो गए हैं। Many things in your life. बहुत सी चीजें आपके जीवन में। Now, what is the meaning of the prophet Habakkuk? तो अब यहाँ पर इस हबक्कुक जो नबी है उसका क्या मतलब है? The meaning of Habakkuk means to embrace and to wrestle. और यहाँ पर हबक्कुक नबी का जो मतलब है वह इम्प्रेस और उससे लड़ना। And when the prophet he began to speak with God, और जब वो नबी है, जब वो परमेश्वर से बोलता है, he is trying in all of his strength to impress God, even though he feels God is not justified. तो यहाँ पर वो बिल्कुल अपनी सारी ताकत लगा देता है परमेश्वर को महिमा देने के लिए। उस हालात में भी He's trying to impress the judgment of God. He's trying to impress what God wants to do. वो परमेश्वर को महिमा देना चाहता उन बातों के लिए, उस न्याय के लिए जो परमेश्वर जो कार्यों को करने वाला है। But he is not able to accept it. लेकिन वो उसको स्वीकार कर नहीं He पाता। cannot accept because what he sees does not match
with what he believes. तो कि वो विश्वास इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो वो विश्वास करता है वो उससे नहीं मेल खा रहा है जो वो देख पा रहा है। Oh, God is God of love. और जो परमेश्वर है वो प्रेम का God परमेश्वर is है। a God of prosperity. जो परमेश्वर है वो उन्नति का परमेश्वर God is a loving God. जो परमेश्वर है वो भला God परमेश्वर है। never does bad. परमेश्वर कभी भी बुरा नहीं कर। Why would a good God do such a bad thing? क्यों एक भला परमेश्वर ऐसे बुरे कार्यों को। And so many of these questions begin to haunt the heart of man. और ऐसे ही बहुत तरीके के सवाल हैं एक मनुष्य के मन में आते हैं। I came across something that I heard recently. और मैंने एक बात सुनी है अभी हाल ही में। Where did you get this concept that God is good? आपने इस बात को कहाँ से सुना कि जो परमेश्वर है वो भला है? Because when you look into the history, क्योंकि जब आप इतिहास को देखते हैं so many bad things have always happened. बहुत सारी बुरी घटनाएं होती आई हैं। There has never been a time when bad things have never occurred. कभी भी ऐसा समय नहीं आया जहाँ पर उस बुराई को जवाब दिया गया हो। But in the midst of all of this, लेकिन इन सभी के बीच में भी why are you not able to accept that bad things can also happen to good people? आप ये इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि जो बुरी घटनाएं हैं वो एक भले इंसान के साथ भी हो Where सकती did है? you get the concept that God is only good? आपको इस बात को कहाँ से मिला कि जो परमेश्वर है वो सिर्फ भला है? Some people say, I don't want to believe in the Bible कुछ लोग कहते हैं कि मैं इस पुस्तक में विश्वास नहीं करता because I believe that God is a God of good. क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि जो परमेश्वर है वो भला But the परमेश्वर है। Bible speaks about a lot of bad things also. लेकिन जो बाइबल है वो बहुत सी बुरी बातों का भी जिक्र करती है। You look into the Old Testament and the Old Testament is full of wars. आप देखेंगे कि पुराने नियम में जो पुराना नियम है वो पूरा युद्धों से भरा हुआ है। But the concept that God is good itself comes from the Bible. लेकिन ये जो कंसेप्ट है जो विचार है कि परमेश्वर भला है ये भी वचन में से आया है। Sometimes you are not able to embrace what God is doing because what you believe and what you see does not match. कभी कभी आप परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाते क्योंकि जो आप विश्वास करते हैं और जो आप देख रहे हैं वो दोनों ही अलग हैं। Sometimes you are at the lowest point of your life. कभी कभी आप अपने जीवन के एकदम निचले हिस्से में होते हैं। Maybe you lose a dear one. हो सकता है शायद आपने किसी अपने करीबी को खोया, You lose something so dear in your heart. आपने कुछ ऐसी जन को खोया जो आपके मन की बहुत ज्यादा करीब था। Nothing in the world can console you. और इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको आराम दे रहा हो। No sermons, no Bible studies, no prayers can move you. कोई भी ना ही कोई बाइबल स्टडी ना कोई प्रार्थना आपको आराम दे पा रहे हैं। And sometimes you do not understand. और कभी कभी आप समझ भी नहीं पाते। And therefore he says in verse 3, Habakkuk says, why do you make me look at injustice? Why do you tolerate wrongdoing? और इसीलिए तीसरी आयत में कहता है तू मुझे अनर्थ कामों में क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात देखता ही रहता है? In short, what Habakkuk is trying to say is that God, you are not doing enough. और यहाँ पर जो हबक्कुक है वो कहता है कि परमेश्वर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। And there are three things that he conveys to God. और यहाँ पर तीन बातें हैं जो परमेश्वर तक पहुँचाता है। Number one, पहला, you might mean to say, Lord, you are not doing, you do not really care for me. यहाँ पर वो बताना चाह रहा है कि परमेश्वर आप मेरी परवाह नहीं कर रहे हैं। Or या फिर you're not doing so much for me as the way you're supposed to do. या फिर आपको जैसा करना चाहिए आप वैसा मेरे साथ नहीं कर रहे हैं। Or या फिर what you are doing does not seem fair to us. या फिर जो भी आप मेरे लिए कर रहे हैं वो मुझे सही मालूम नहीं हो पा रहा है। Have you ever felt these questions come into your heart? क्या आपने कभी ऐसे सवालों को महसूस किया है जो आपके मन में आते हैं? Sometimes you feel the people who are most corrupted people, those people who are living their life with sin, they are the ones who are living the most healthy life. कभी कभी आपने देखा हो कि कोई ऐसा जन जो अपना जीवन बहुत भ्रष्टाचार में जी रहा हो या फिर हर एक पापों में जी रहा हो वही व्यक्ति सबसे ज्यादा स्वस्थ जीवन जी रहा है। They are living the most prosperous and happy life. वो बहुत ही आनंद और उन्नति वाला जीवन जी रहे हैं। You begin to think like that. हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो। You have never drank wine. आपने कभी भी दारू नहीं पी, You have never drank alcohol. आपने कभी भी शराब नहीं You have पी, never smoked. आपने कभी भी धूम्रपान नहीं You करा, got sickness. लेकिन आपको बीमारी मिल गई। Your liver is affected. आपका जो लीवर है वो खराब हो रहा है, Your chest is affected. आपकी जो छाती है Your वो खराब हो organs गई are affected. और आप भी खराब हो रहे हैं। Many of you this afternoon may be sitting with some kind of sickness for which you are not
You don't have any fault of yours. और आप में से बहुत से लोग हैं, कुछ लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं उस बीमारी के साथ जिसके लिए आपने कोई काम किया ही नहीं। And therefore, when all of the things begin to happen, you begin to ask question, Lord, why? Why do I have to see all of this injustice in my life, in my family, and in this society? और जब आप इन सब चीज़ों को घटते हुए देखते हैं तो आपके मन में सवाल आता है कि परमेश्वर ये सब अन्याय मेरे जीवन में क्यों, मेरे परिवार में क्यों और मेरे समाज में क्यों। And most of us, we began to hit the rock bottom of our life and began to question God. और कब इसीलिए हम अपने जीवन के एकदम नीचे तक जाकर हम ये सवाल परमेश्वर से करते The हैं। question is, can we not cry to God? सवाल यहाँ पर यह है, क्या हम परमेश्वर से पुकार नहीं सकते? Can we not ask questions to God? क्या हम परमेश्वर से सवाल नहीं पूछ सकते? Not express our emotions to God? क्या हम परमेश्वर को अपनी भावनाएं नहीं जता सकते? Yes, you can. हाँ, आप कर सकते। When you look at the Bible in the book of Lamentations, in the book of Ecclesiastes, in the book of Jeremiah, in the book of Job, you see all of these books full of questions. तो जब आप देखते हैं अय्यूब की पुस्तक में, इक्लेसियास्ट की पुस्तक में, लेमेंटेशन की पुस्तक में, ये सब जो पुस्तकें यहाँ पर हर एक जन ने अपनी भावनाओं को परमेश्वर के सामने There रखा are है। questions because of sufferings they have endured. उनके सवाल भरे हुए थे, क्यों? क्योंकि जिस परेशानी में वो गुजर रहे थे। And whereas every morning when you come to the worship, I want to boost you up by speaking things about the power and the grace of God. This morning, I also want to tell you about the harsh realities of life. और इसीलिए जब आप कभी भी आराधना की सभा में आए तो अपने आप को आप भली बातें कहें आप आए। और अभी मैं आपसे कुछ बातें करूंगा जो कि जीवन की सच्ची बातें हैं। Sometimes I feel that many of you accept Jesus, but you are not able to face when challenges comes your way. कभी कभी मुझे महसूस होता है कि आप में से बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को तो स्वीकार किया है, लेकिन उन चुनौतियों को आप स्वीकार नहीं कर पाते। Times when trouble comes, कभी कभी जब परेशानियां आती you don't even feel like coming to church. और आपको ऐसा महसूस होता है कि आप कलीसिया ना जाएं। Sometimes when things begin to happen in a way which is not supposed to be according to what you taught, you don't even feel like believing in Jesus. और कभी कभी जब बातें वैसी होने लगती हैं जैसे आपने सोची भी ना हो, तो यहाँ तक कि आप यीशु मसीह पर विश्वास भी नहीं रखते। Questions begin to pour out in your heart. जो सवाल आपके मन से बाहर आते हैं। Oh, I believe something about you, God, but you are turning out to be different. ओ, मैं तो आपको एक परमेश्वर सोचता था, लेकिन अब आप एक अलग ही लग रहे हैं। Many people say that new believers do not have the stamina. Listen to me carefully. New believers do not have the stamina to endure sufferings and trials in life. बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो नए विश्वासी होते हैं उनके अंदर उतनी ताकत नहीं होती कि वो उस परेशानियों और चुनौतियों को वो झेल सकें। Wherever there is healing and miracle, you will run to that place. जहाँ पर भी चंगाई और छुटकारे हो रहे हैं आप वहाँ पर भाग। Wherever there is party and Christmas program, you will reach there. जहाँ पर भी क्रिसमस की पार्टी होगी आप वहाँ पहुँच जाएंगे। Those people who have never been, they will surely be in the Christmas program. Telling you, next Sunday you see this full of people. और अब जो लोग कभी भी नहीं आपको दिखेंगे वो क्रिसमस वाले दिन में दिखेंगे, और मैं कहूँगा कि अगले रविवार को आप देखेंगे पूरा हॉल जो वो भरा हुआ हो। Amen. There will not be place to sit. वहाँ पर बैठने की भी जगह नहीं You will होगी। expect around nearly 400 people coming this next Sunday. आप देखेंगे कि 400 से अधिक लोग होंगे जो यहाँ पर But आएंगे। after 1 or 2 Sundays, you will see none of them. लेकिन आप देखेंगे 1 या 2 हफ्ते बाद उनमें से कोई भी नहीं होगा। Why does this happen? क्यों ऐसा होता है? Why do you see God only in terms of celebration? क्यों आप परमेश्वर को सिर्फ एक त्योहार की नजरों से देखते हैं? You see God only from one perspective. आप परमेश्वर को सिर्फ एक ही नजरिए से देखते You हैं। worship Him only in celebration. आप उसकी उपासना सिर्फ त्योहार के समय Go करते to हैं। Him only in praises. आप उसके पास जब ही जाते हैं जब वो सही होकर You रहा go होता to Him only when there are people in the church who are good enough to welcome you. है। जब आप उसके पास जब ही जाते हैं जब कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छे से स्वागत कर पाते हैं। But when you are in trials, when you are in problems, when your heart is full of tears,
लेकिन जब आप परेशानियों में होते हैं, जब आप चुनौतियों में होते हैं, जब आपका मन आंसुओं से भरा हुआ होता है, you don't even feel like praising Him. और तब आपको ऐसा महसूस भी नहीं होता कि आप उसको You don't मनाते even feel like worshiping Him. आपको ऐसा लगता भी नहीं कि आप उसकी उपासना करें You don't even feel like going to the church to worship. और आपको ऐसा लगता नहीं कि आप जाएं कलीसिया में और उसकी उपासना A करें। friend of mine told me, एक मेरे दोस्त ने मुझे कहा था when a new believer believes in Jesus, कि जब एक नया विश्वासी मसीह में विश्वास करता है, the memory of a new believer is very short. जो याददाश्त जो होती है क्षमता वो उसकी बहुत छोटी होती है। So when his memories goes back to about 10 years, 15 years, is a life that he has lived without Christ. तो जब वो देखता है अपने 10 या 15 साल पिछले वाले जीवन को, वो अभी भी जीवित होती है उसकी यादों में। There is a memory without Christ. उसमें एक ऐसी याददाश्त जहाँ पर वो बिना मसीह के So जिया। when things begin to happen, all of a sudden the memories goes back and you begin to think, oh, my life was much better without Christ. And my life was in that way, so I better just live that way. तो जब इस तरीके की यादें उसके अंदर जिंदा होती है तो वो सोचता है कि ओ जो मेरा जीवन है वो पहले बहुत ही अच्छा था मसीह में आने से पहले, फिर वो उसी तरीके से जीता है। That is why Sunday schools are so important. इसीलिए जो संडे स्कूल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी The school, right from childhood, a memory is developed in order to strongly stand up in the foundation of Jesus. बस क्योंकि इसीलिए संडे स्कूल में छोटे से ही बचपन से ही उनको उस मसीह के जो उनका फाउंडेशन है उसमें उनको उठाया Now, when Jesus died on the cross, he also was crying out and complaining and crying out to God the Father. और जब यीशु मसीह उस क्रूस पर था वहां पर भी वो उस पिता से पुकार कर रहा था, शिकायत कर रहा था। And he was saying, Lord, Abba, Father, why are you trying to turn your face away from me? तो वो कहता है कि हे पिता अब्बा क्यों आप मुझसे अपना चेहरा मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। Now, अब there are 3 stages of a believer. अब यहाँ पर 3 स्तर होते हैं एक विश्वासी के। The first stage is पहला जो स्तर होता है, when you are totally shattered, पहला जब आप बिल्कुल पूरी तरीके से टूट जाते हैं, बिखरे होते हैं, broken and hurt, and you come to church. जब आप टूटे हुए होते हैं, दुखी होते हैं और आप जब कलीसिया में आते हैं, Maybe a friend invited you. हो सकता है शायद आपके दोस्त ने आपको आमंत्रित And you began to come to the church and worship God. और आप कलीसिया में आते हैं और खुदा की उपासना करते हैं And you began to encounter with God. और आप परमेश्वर को वहाँ पर देखते हैं, And then you began to feel the love and His grace in your life. और आप परमेश्वर के अनुग्रह और उसके प्रेम को अपने जीवन में देखते हैं, Feel that और आपको महसूस होता है कि अब आप सबसे ऊपर हैं। every time you pray, God is answering you. आप जब भी प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर आपको उत्तर दे रहा है। Even before the worship starts, you are here 2 hours before. यहाँ तक कि जब भी आराधना शुरू होती है आप 2 घंटा पहले आ गए। You're giving your time, your energy in the center and the people and all of the activities in the church. और आप कलीसिया में अपना समय दे रहे हैं, सेंटर में अपना समय दे रहे हैं हर एक कार्यों में। And you begin to look at people and why are these people leading such a lukewarm life? और आप लोगों की तरफ देखकर कहते होंगे ओह कि ये सारे लोग ऐसा गुनगुना जीवन क्यों जी रहे हैं। Now comes the second stage अब दूसरे स्तर में आते हैं where you at the जब आप सबसे ऊपर वाले स्तर में हो, you feel your life is at the top and you're spiritually revived and powerful. आपको महसूस होता है कि आप सबसे अपने आध्यात्मिक जीवन में सबसे ऊपर हैं और आप एकदम भरे हुए हैं। But then a time comes. फिर एक समय आता है, As you keep going to the church, as you keep coming for the word of God, then you feel that you don't feel the same grace and the power anymore. और जब आप लगातार कलीसिया में आ रहे हैं, आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, फिर वो जो ऊर्जा है, जो एक मनोबल है, वो आपका वैसा ही सेम नहीं रह जाता। You feel like your attendance to go to church, the desire to go to church is dropping down. फिर आपको महसूस होता है कि जो आपकी इच्छा है कलीसिया जाने की वो धीरे धीरे नीचे गिर रही The है, desire to serve Jesus is going down. कि मसीह की सेविकाई करने की जो इच्छा है वो धीरे धीरे नीचे, Commitment is going down. आपकी जो बातें हैं जो आपने दृढ़ संकल्प करा था यीशु में वो अब नीचे जा रहा है। Have you come across these 3 stages? क्या आप कभी ऐसे 3 स्तरों में कभी आए हैं? Which stage are you at? आप किस पड़ाव में हैं? Maybe you are at the initial stage. हो सकता है आप अभी पहले पड़ाव Maybe you are at the top of the stage. या फिर सबसे ऊपर वाले पड़ाव, Maybe you are at the downward curve stage where you feel you have no desire at all. या फिर आप अभी ऐसे नीचे गिरने वाले पड़ाव पर जहाँ पर आपको महसूस होता है कि आपके अंदर कोई इच्छा नहीं। It is at this 3rd stage when you will make
three options of choices. और ये तीसरे पड़ाव में आपके पास 3 चुनाव आते हैं जो आप लेते हैं। First option, you will say, पहला चुनाव में आप कहते हैं, oh, it's okay. ओ ये ठीक है, I trust the Lord. मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। No matter even if bad things are happening, I trust that He is in control. फर्क नहीं पड़ता अगर बुरी बातें हो भी रही है तो परमेश्वर काबू में है And God is in control. और परमेश्वर संयम में I है learned to trust in Him. और मैंने सीखा है उस पर विश्वास And करना। at that level, your spiritual growth will happen. और उस पड़ाव में आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो आप उसमें बढ़ते हैं। Second stage, दूसरा पड़ाव, all of the bad thing that is happening, और जितनी भी बुरी बातें जो घट रही हैं I feel that God is not real. और मुझे महसूस होता है कि जो परमेश्वर है वो असली नहीं है, Oh, this is not a God. ये परमेश्वर तो नहीं है। And so sadly, many people come to this conclusion. और बहुत बुरी खबर है ये है कि बहुत से लोग इस कंक्लूजन में आ जाते हैं, इस फैसले में आ जाते हैं, They turn away from God. वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। This stage, they will say, I have tried God, I have tested God, I have tested church, I have tested everything, but you know what? I'm not interested. I'm going back. और इस पड़ाव में वो कहता है कि मैंने कलीसिया का भी स्वाद चखा, मैंने परमेश्वर का भी स्वाद चखा, मैंने हर एक चीज को चख लिया, लेकिन अब मेरी उसमें कोई भी रुचि नहीं है, मैं दूर जा रहा हूँ। A few months ago, कुछ महीने पहले I met somebody, मैं किसी से मिला, and somebody who was so active for the Lord. कोई ऐसा जन जो परमेश्वर के लिए हमेशा भरा हुआ रहता था। He came up with this idea वो एक ऐसी सोच के साथ आया that I don't believe in a God anymore. कि मैं अब परमेश्वर पर और विश्वास नहीं करता, God is not real. परमेश्वर असली नहीं है। It's so sad to hear such things. ऐसी खबर सुन के बहुत ही बुरा लगता है। And maybe one day you may be one of them और एक दिन हो सकता है कि कहीं आप उनमें से ना हो, if you are not careful. अगर आप सतर्क नहीं है The तो। most important stage is this: लेकिन सबसे अहम पड़ाव ये है to impress and wrestle like Habakkuk in the middle of your pain, in the middle of your trials. कि उस परमेश्वर को महिमा देना और अपनी परेशानियों में, अपनी चुनौतियों में आराम से वहां पर बैठना। My dear brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, how many of you are at this point when you have chosen to impress and wrestle with God, no matter whatever is happening in your life right now? आप में से कितने जन हैं जिसने ये फैसला लिया है कि आप परमेश्वर को महिमा देंगे और उन चुनौतियों से, उन स्थितियों से आप लड़ेंगे। It is very difficult to impress someone when you are fighting. ये बहुत ही मुश्किल है कि जब आप किसी को महिमा करना, जब आप लड़ रहे हो, No, to impress someone. वो किसी को गले लगाना। And maybe, my dear brothers and sisters, some of you, as the Lord speaking to my heart, some of you are at this stage where you are struggling, and all you need to do is to impress, wrestle, and just impress God in your life. जैसे कि परमेश्वर मेरे मन में ढाल रहा है कि आप में से बहुत से लोग हैं जो ऐसी स्थिति में है, जो ऐसी चुनौतियों में, तो आपको ज़रूरत है सिर्फ कि आप वहाँ पर परमेश्वर को महिमा दे, गले लगाएं और लड़ते रहें। Maybe you don't understand. हो सकता है कि शायद आप नहीं समझ पाते, Maybe about your marriage, अपने विवाह को लेकर, about your job, अपनी नौकरी को लेकर, about your children, अपने बच्चों को लेकर, about your family, अपने परिवार को लेकर, about your finances, अपने आर्थिक चीजों को लेकर, your family members, अपने परिवार के सदस्यों के about लिए, your spiritual life, अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए, about your future. अपने भविष्य के लिए। Would you still choose to impress Him, or you would choose to just walk away from God? क्या आप अभी भी चुनाव करेंगे उसको महिमा देना, उसके साथ रहना, या फिर उससे दूर हो जाए? And that is what it says in the book of James chapter 1 verses 2 to 5. और इसीलिए याकूब की पुस्तक में लिखा है, पहली उसके दूसरी आयत से 5 It says, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance, and let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking in anything. याकूब की पुस्तक उसका अध्याय 1-2 कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। How will you know how closely an intimate relationship
what kind of an intimate relationship you have in Jesus? How will you know that? आप कैसे जान पाएंगे कि आपका जो रिश्ता है, घनिष्ठ रिश्ता परमेश्वर के साथ है? The intimate relationship with Jesus is not tested in the high mountain top. जो परमेश्वर के साथ जो घनिष्ठ रिश्ता है उसका पता जब नहीं चल पाता जब आप सबसे पहाड़ के ऊंचे लेवल पर हैं, Not at the high places of your life. ना ही आपके जीवन के ऊंचे स्तरों पे Not at a time when everything is going so perfectly. ना ही ऐसे समय में भी जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल Oh, you have a good job, और आपके पास अच्छी नौकरी है, beautiful family, आपके पास एक खूबसूरत परिवार है, parents are doing so well, आपके जो माँ बाप है वो अच्छे से कर रहे हैं, business is going so well, आपका जो कारोबार है वो अच्छे से चल रहा है, no sickness, कोई भी बीमारी everything नहीं, is so perfect. हर एक चीज अच्छे से हो रही है। You have a reason to praise Jesus. आपके पास कारण है कि आप परमेश्वर को महिमा दें। It is said that many people do not still praise Jesus at that point. और ये कहा जाता है कि ऐसे समय में भी जो लोग हैं वो परमेश्वर को महिमा नहीं देते, But it is easier to praise Him at that point. लेकिन ये आसान होता है कि इस समय उसको There महिमा is also a chance that you forget God at that point. और यहाँ पर ऐसा भी पल आता है जहाँ पर आप परमेश्वर को भूल जाते हैं। But the intimacy with Jesus is known at the lowest point of your life. लेकिन जो उस यीशु मसीह के साथ जो एक घनिष्ठ रिश्ता है वो आपके जीवन में सबसे नीचे वाले स्तर में होगा। And this is why it says in the book of Psalm 23, और इसीलिए कहा जाता है भजन संहिता की पुस्तक उसका अध्याय 23 में verse 4. उसके चौथी Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protects and comforts me. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। Even in the darkest valley of your life, यहाँ तक कि आपके जीवन के अंधकार घाटियों में भी believing and trusting God that He is walking beside you. विश्वास रखना और परमेश्वर पर भरोसा रखना कि वो आपके संग संग चल रहा है। Will you still remember Him when you are just all by yourself, you are all alone, and you are at the lowest point of your life? क्या आप जब भी परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, विश्वास करेंगे जब सिर्फ आप ही हैं, अकेले हैं और अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर हैं? And the most interesting part of this book of chapter 1 Habakkuk is, और सबसे अच्छी बात इस हबक्कुक की पहले अध्याय but of all the prayers, इन सब प्रार्थनाओं के बावजूद, all the complaints, इन सब शिकायतों के अलावा बावजूद भी do you know what God says? परमेश्वर क्या कहता है? God chooses not to change His decision. परमेश्वर ने चुनाव किया कि वो अपने फैसले को नहीं बदलेगा। And He says और वो कहता है in verse 5, 5वीं आयत में, it says in verse 6, I'm raising up the Babylonians, the ruthless and impetuous people, to come and capture you. देखो मैं कसदियों को उभारने पर हूँ, वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति हैं जो पराये व्यवस्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। Maybe, my dear brothers and sisters, the situations you are going through at this point, हो सकता है शायद कि जो इस स्थिति से परेशानी से आप अपने जीवन अभी चल रहे हैं might get better. वो आपको अच्छा कर दे, Maybe it may not get better. और या फिर वो सही ना हो। Maybe it may become worse. हो सकता है शायद वो और ज़्यादा खराब हो। Maybe today you have food to eat, tomorrow maybe you will not have any food to eat. हो सकता है शायद आज आपके पास खाने के लिए एक भोजन हो लेकिन कल ना हो। Maybe some of you, you're praying for marriage and the marriage may never happen. हो सकता है शायद आप आज विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हो और विवाह हो ही ना कर। Maybe you are praying till you're 50 years of age. हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हो 50 साल तक जी रहे हो, Another Salman Khan. आप अगले सलमान खान हैं। Maybe you may never get married. हो सकता है शायद आप कभी शादी ना हो। Maybe you may never get the kind of a job that you always wanted. हो सकता है शायद आपको वैसी नौकरी कभी ना मिले जैसा आप चाह रहे हैं। Maybe your business may not prosper in the way you thought it will be. हो सकता है शायद आपका जो कारोबार है वो इस प्रकार से उन्नति ना पा रहा हो जैसा आप सोचते In the हैं। book of Habakkuk, God doesn't say, okay, Habakkuk, I'm going to listen to you, I'm going to solve your problem. He doesn't say that. और इस हबक्कुक की पुस्तक में परमेश्वर ये नहीं कह रहे हाँ ठीक है हबक्कुक, मैं तेरे को सुनता हूँ, मैं तेरी सारी समस्याओं को हल कर दूँ। He says, I'm going to do something. वो कहता है कि मैं कुछ चीज करने वाला हूँ। Now I'm going to hand over all people of Israelites to the hands of the Babylonians as captives. और मैं अब इस
इज़राइल के जितने भी लोग हैं उसको मैं बेबीलोन के लोगों के गुलामी में डाल दूंगा। But what does God want from you? लेकिन इसमें परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? God wants that no matter whatever situation comes your way, you yield to Him, submit to Him, trust not on your understanding, but lean on Him, as says in the book of Proverbs, chapter 3, verse 5 and 6. और परमेश्वर इसमें चाहता है कि आप उसके ऊपर निर्भर हो जाएं, अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर ना हो, जैसे नीति वचन की पुस्तक उसके 3 अध्याय में लिखा है। It says in verse 5 and 6, trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. तो अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। Verse 6, and in all your ways submit to Him, and He will make your path straight. उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। It is so difficult to submit. ये बहुत मुश्किल होता है समर्पण करना। And this afternoon, I leave you with a very strong thought. और आज की दोपहर में आपको छोड़ूंगा एक ताकतवर सोच के साथ। We believe in a prosperous God. हम एक उन्नति वाले परमेश्वर पर विश्वास, We believe in a God who heals, who delivers. हम विश्वास करते हैं ऐसे खुदा पर जो छुटकारा देता है, जो चंगाई देता And है। I pray everybody who comes to this church experience His healing power, His deliverance power, and His love and grace upon your life. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक जन जो इस कलीसिया में आता है वो उसकी चंगाई का, उसके छुटकारे का और उसकी हर एक आध्यात्मिक सामर्थ्य का अनुभव करे। Also be that for many of you, your answers, God's answer may not be according to how you are thinking it will be. लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा, तो आप उसको कैसा लेंगे? Will you still trust Him? क्या आप फिर भी परमेश्वर पर भरोसा Will रखेंगे? you still believe Him? क्या आप फिर भी उस पर विश्वास करेंगे? Will you still lean not on your understanding but submit to Him? लेकिन क्या आप फिर भी अपनी समझ का सहारा ना लेंगे और उस पर आप अपने आप को सौंप देंगे? Or will you walk away from God? और या फिर आप परमेश्वर से दूर चले जाएंगे? I leave that answer to you. मैं इसका जो उत्तर है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। And you will find और आप देखेंगे the true intimacy with Him at the lowest point of your life. कि आपके जीवन की सबसे निचले वाले स्तर में ही सबसे ज्यादा घनिष्ठ रिश्ता आपको मिलेगा उस खुदा के साथ।